Welcome to the Phoenix Trading. So, here we are again seeing the Nifty weekly output and hope you are doing the great trading because it's really a good opportunity right now in the market for the swing traders and those who are doing the FNO tradings Nifty weekly options, they are struggling a lot. So I feel fortunate that I have designed such kind of a trading strategy for working people. As I'm working, I'm not a full-time trader. So I'm feeling really fortunate that I'm earning a really good percentage than those who are doing the Nifty weekly options trading and FNO trading. So they are facing a lot of risk and drawdown nowadays because market is totally a range bound, and we will see today how is market moving. And first topic I want to discuss that FII and DII activity here. So you can see the stockage application I am opened here, and we will see how the FII and DII are investing their money and from where they are taking out their money. So daily FII is selling around 3,000 4,000 crores, and DII is continuous on a buying mode. But DI is not selling, overall in all sectors. They are selling into some specific sectors because it has been, always in overloaded or a favorite sector we can say for FIIs. The main sector FII used to love is IT sector, and we can see IT is the most beaten down sector. So, sorry. So till 15th of the April, FII has taken out around 4,600 crores rupees from the Indian market, and it has been a most beaten down sector. So information technology, FMCG, consumer durables are the most beaten down sectors. Then construction materials, oil, gas, textiles also in the minus. FI is not interested in investing in those sectors. Other sectors are very neutrals like chemicals, metal, healthcare, which is part of pharmaceuticals. So those are the silent sectors, and you in on fire sectors we can see the most favored sectors by FIs are power, which is a heavily invested now by the FIIs, and the financial services also, consumer services also. Automobile is very lucrative sector nowadays. We can see many swing trades finding in these sectors. Telecommunication is there, capital goods is there. So if you want to see where the trend of the market in financial services, it has been earlier very beaten down sector. We can see on a first quarter of the for the sorry first month of the 2024, it has been minus 31,000 crores have been taken out from the financial sectors. But now seems they are coming back and started slowly investing into it as rates are cooled down. And anyways, these are the all the details which has very little to do with swing tradings, because swing tradings, yes, these are the important say top points to be noted because generally what I do, I selected these sectors and try to find out swings in those sectors. But charts is also important, and what is chart is saying, if financial services is doing good, but supposedly Kotak is not doing good, right? Kotak is beating down by 20% in 2 days. So it is not wise decision to invest in invest in that bank if the chart is very weak. So you have to see the charts also. And let's moving to chart. Today I will explain you few of my old trades very quickly. If you want to run this fast, you can put the speed into 1.5x also. So let's quickly move to the our Nifty. We will discuss only Nifty today, and I will shift to few charts. I want to explain you how price actions works. So I have draw this kind of line on March, in the May, in the month of March, that I felt that the market will go sideways till the next May month, and it is going as per my prediction that after like March, this 6 weeks are totally silent. Total market is totally range bound. In the zone of 20 to 400 is the resistance, and below 22,000 is the support.
So around this 2000 points market is doing nothing, and I feel like market will go try to go around this zone. Once the resistances break, market will react to the short coverings also, and then it will go again side bound after the election. So this is the elections phase, so market will be very volatile around this phase, and we might see a corrections also in the later part of the August and September. So I feel like that, and it's totally okay for me if I will be wrong in this zone. Market यहाँ से ऊपर भी जा सकता है. So it's a market, but it's my prediction that I feel that market will be sideways for a major. It will create a major zone in this year. सो ये था निफ्टी के बारे में, एंड आई विल नॉट डिस्कसिंग द सेक्टर्स आल्सो बिकॉज ज़्यादा कुछ फर्क है नहीं, सब साइडवेज ही सेक्टर चल रहे हैं. आईटी में एक ब्रेकडाउन मिला है. एक जो कप एंड हैंडल वाला फॉर्मेशन मुझे लग रहा था, ये कप एंड हैंडल के अभी हैंडल की लेवल तक आ चुका है. इफ आई ड्रॉ लाइक दिस, ये जो मैंने सपोर्ट मार्क किया है उस सपोर्ट पे भी आईटी इंडेक्स खड़ा है. अगर ये जो वीकली क्लोजिंग है, यहाँ पे जो लो बना है, अगर ये टूटता है तो यहाँ से बहुत बड़ा फॉल आईटी स्टॉक्स में आने की संभावना है. शायद मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ से एक फेक ब्रेकआउट देके मार्केट फिर से रेंज बाउंड होगा, थोड़े वीक्स यहाँ पे गुजारेगा, फिर ऊपर जाएगा. सो विल सी व्हाट इज हैपनिंग. अगर ज्यादा मेजर फॉल नहीं आता है, मार्केट यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके यहाँ से फिर से अगेन 33,700 के जोन में चला आता है, तो डेफिनेटली फिर ये कप एंड हैंडल फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा. ऑटो सेक्टर एक ही खामे करेक्शन मिला था, जो एक टेस्टिंग हुआ था ऑल टाइम हाई के आसपास का, बस दैट्स इट. उसके बाद में वो फिर से ऊपर जा रहा है. फार्मास्यूटिकल्स ऑल्सो इनटू साइड रेंज नाउ, टोटली साइडवेज हो चुका है. जब तक नया ब्रेकआउट नहीं आता, कोई अपवर्ड मूवमेंट्स नहीं मिलेगी. मेटल्स, हमारा टारगेट मेटल्स में आ चुका है, सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड नाउ इन मेटल सेक्टर. एफएमसीजी, जैसे मैंने बोला था कि एक 6% का मुझे एक अपसाइड नज़र आ रहा है, क्योंकि बहुत बीटन डाउन सेक्टर है, तो शायद अब थोड़ा सा आईटी और एफएमसीजी में थोड़ा सा हमें एक अपसाइड या बाउंस देखने को मिल सकता है. बट इन केस ऑफ एफएमसीजी इज ट्रेडिंग ऑल टाइम हाई, एंड आईटी का ऐसे नहीं है. आईटी में करेक्शन आने के बाद अब नीचे चला जा रहा है. सो दोनों तरफ की कंडीशंस डिफरेंट है. एफएमसीजी इज गोइंग लाइक दिस, एंड आईटी इज गोइंग लाइक दिस. So there is a difference in FMCG. So I will prefer FMCG for swing trading if I get any. PSU banks doing really good. बहुत मस्त बढ़िया एक सेटअप बना है, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ फेब से लेके मार्च तक अप्रैल तक का, 2-3 महीने का. तो अभी एक हमें एक रेंज ब्रेकआउट यहाँ से देखने को मिलेगा, और एक छोटी सी एक रेंज जो थी 13% की, एक वहां तक हमें एक 11% के ट्रेड पीएसयू बैंक में मिल सकते हैं. सो आई एम बेटिंग ऑन महाराष्ट्र बैंक. 61 पे भी मैंने ऐड किया है. आई एम एडिंग सिंस 17 रुपीज, 32 रुपीज, देन आई एडेड ऑन 42 रुपीज, एंड आई एडेड अराउंड 57 रुपीज, एंड नाउ ऑन 61 रुपीज. सो मैं धीरे धीरे मेरी महाराष्ट्र बैंक की जो पोजीशन है वो एक्सेल करते जा रहा हूँ, एंड जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो बोल रहे हैं कि बैंक इज डूइंग रियली गुड. देन मिड कैप सेक्टर जो था, एक फॉल आया था, एंड उसके बाद मैंने जो बोला था कि उसका जो एक फिबोनाची लेवल है वो क्रॉस करना चाहिए ये वीक में. वो जो वीक था अराउंड मार्च का लास्ट वीक था. यस, मैंने वहां पे बोला था आपको वीडियोस में कि ये वीक के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है, तो ये क्लोजिंग आ गई, वो काफी ऊपर आ गई. तो वो ऊपर आने के बाद उसने रीटेस्ट कर लिया, कंफर्मेशन जो ब्रेकआउट था वो, यहाँ से फिर से हम एक मिड कैप में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकते हो. अगले टारगेट जो मिड कैप के आ रहे हैं, तो ये निकल के आएंगे एज पर फिबोनाची, विच इज अराउंड 52,500 एंड 56,900. सो बड़े बड़े टारगेट है ऊपर की साइड पे, एंड मिड कैप लुकिंग रियली गुड ऑन चार्ट. सो कोई डर नहीं लग रहा है मार्केट में अभी. ये यहाँ पे स्मॉल कैप ने भी क्लियर ब्रेकआउट दे दिया है. जो ऑल टाइम हाई था वो ये वीक में हमें ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग मिली है, एंड विच इज़ अ रियली गुड बुलिश कैंडल. तो ये जो फेज आते हैं यहाँ पे लोग डर जाते हैं इन जनरल कि अरे क्या हो गया, अब सेलिंग आ जाएगी. बट नहीं, एक बुलिश जो चार्ट होता है वो सेलिंग के बाद थोड़ा कंसोलिडेट होने के बाद फिर से ऊपर के साइड में नीचे जो रिटेल्स है उनको ट्रैप करके ऊपर चला जाता है. सो रिगार्डलेस ऑफ एफआईआई हेवी सेलिंग, स्मॉल कैप मिड कैप में जो तेजी है वो बनी हुई है, एंड हमें उसका फायदा उठाना चाहिए. बेसिकली मैं तो जरूर उठा रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग के. लास्ट स्विंग ट्रेडिंग जो बोला था मैंने, दौलत एल्गो,
काफी अच्छे रिटर्न दिए, काफी अच्छे, मतलब कैन यू इमेजिन, इट गिव्स मी अराउंड 60% इन 1 मंथ, 60%, विच इज अज रिटर्न एंड सिंपल ब्रेकआउट था। और मैंने जब बोला था तो लास्ट वीक 90 के आसपास बोला था मैंने, 93 के आसपास बोला था। वहीं से भी आपको 24% रिटर्न मिले हैं यहाँ पे। सो दोनों तालकों में से मैंने क्यों ट्रेड लिया था वो भी मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं, सो आई डोंट वांट टू रिपीट इट अगेन। इफ़ यू वांट टू चेक आउट यू कैन चेक जो लास्ट वीडियो था वो। उसके बाद में मैंने डिस्कस किया था एरिस एग आर्चिड प्लाई, नॉट एरिस एग्रो, आर्चिड प्लाई मैंने डिस्कस किया था। उसने भी काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। लुक एट दिस, मैंने अराउंड खरीदा था 89 के आसपास, और उसके बाद यहाँ से एक 30-40% के रिटर्न मिले हैं, और यहाँ पे सेटल डाउन हुआ है अराउंड 33% पे। बट मैंने ऐड किए हैं यहाँ पे और ज़्यादा, 113 पे मैंने ऐड किए हैं। एंड अभी टारगेट है 118, और उसका टारगेट वन जो है अभी करंट मार्केट प्राइस 118 है, टारगेट वन उसका है 149 रुपीज़। तो तब तक मैं उसको ट्रेल करते रहूंगा अगर मुझे कोई गिरावट मिलती है इसमें, क्योंकि ये बहुत बढ़िया पैटर्न था और बहुत सिंपल ट्रेड था ये। आई विल शो यू व्हाई आई टुक दिस ट्रेड। सी मल्टीपल रेजिस्टेंस यहाँ पे टेस्ट हुआ था, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और ये फाइनली ब्रेकआउट आया था। तो ये एक जो फॉर्मेशन बना था, मैंने जैसे लास्ट वीडियो में भी बोला था कि मैं कप के हैंडल जब बनता है तो उसके लोअर साइड पे बाय करने की कोशिश करता, तो मैंने यहाँ पे 81 रुपीज़ के आसपास लिया था इसको। एंड इसके बाद एक अच्छी रन हमें देखने मिली है। तो ये जो एक रेंज बनी है यहाँ पे, ये रेंज तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, लाइक 155 रुपीज। जो मैंने 149 का टारगेट रखा था, टेक्निकल टारगेट 155 आ रहा है, बट हम लोग उतना तक नहीं जाते, हम थोड़े से एक एक 5-6% पहले ही हमारा प्रॉफिट बुक कर लेते इन केस कि अगर नहीं गया, ट्रैप हो गए, बीच में ये करेक्शन आ गया तो वो। सो जनरली मैं थोड़ा टारगेट से पहले प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, बिकॉज आई हैव नथिंग टू लूज। मुझे अगर ऊपर के 6% नहीं मिले तो भी चलेगा, बट वॉट आई हैव अर्न 60%, वो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मैटर करता है, राइट? तो सिक्स अपार्ट फ्रॉम 67% आई विल बी हैप्पी अराउंड 57-60%। सो मेरे स्विंग ट्रेड ऐसे ही होते हैं। और जो पेड क्लाइंट्स है दे आर रियली हैप्पी, मुझे काफ़ी सारे अच्छे पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं उनके साइड से, एंड दे आर डूइंग रियली गुड। बहुत इजी होता है, कोई दिमाग को प्रॉब्लम है नहीं, स्ट्रेस नहीं है। काफ़ी मैं सब स्टॉप देता हूँ, मैं मनी मैनेजमेंट भी समझाता हूँ कैसे काम करना है, क्या करना है। इफ़ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल एंड इफ़ यू आर फेड अप विद दैट सेम म्यूचुअल फंड ट्रैप, देन यू कैन डेफिनेटली थिंक अबाउट डूइंग स्विंग ट्रेडिंग्स। आपका ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, खाली फ्राइडे को ट्रेड्स आते हैं मेरे। सो कुछ ट्रेड हमने लिए थे वो भी बता देते हैं, और कुछ चार्ट भी डिस्कस करने हैं। सो यूटीआई एमसी मैंने कुछ टाइम पहले दिया था पेड मेंबर्स को, अराउंड 890 के जोन में। ये दिया था कुछ अराउंड अप्रैल में आई गेस, या फिर मार्च के एंड में, यहाँ पे कहीं दिया था। उसके बाद नीचे भी चलाया, जो मिड कैप में सेलिंग आया उसके बाद नीचे चलाया, बट स्टॉप हिट नहीं हुआ था। 790 का स्टॉप था, स्टॉप हमारा बच चुका था। 803 का लो मार के उसने फिर से बाउंस किया है। दैट्स वाई स्टॉप इज इम्पोर्टेंट, कि आपका जो कैपिटल ड्रॉ डाउन है वो बचा रहता है, और स्टॉप का भी कोई कॉमन सेंस होना चाहिए। कोई भी स्टॉप नहीं लगाते, उसको एक एक मेथड होती है स्टॉप्स लगाने की भी, कहाँ स्टॉप्स, कहाँ तक ऑपरेटर आपको ट्रैप कर सकते हैं वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये हमारे फिर से फेवर में आ चुका है, एंड अराउंड 890 के लेवल से इफ आई कैलकुलेट दिस, तो अब तक के 10% बन चुके हैं, इसका टारगेट अब तक आना बाकी है। तो ये ट्रेड एक चल रहा है। आईडीबीआई ट्रेड भी एक चल रहा है अच्छा खासा, हमने बहुत नीचे में लिया हुआ है इसको अराउंड 64 के लेवल पे, और अब तक इसके रिटर्न है 36%। एरिस एग्रो में फिर से एक बाइंग कंडीशन बन चुकी है। आई विल डिलीट एवरीथिंग। सो आफ्टर दिस क्लियर ब्रेकआउट यहाँ से, जो कि कंसोलिडेशन था ऑलमोस्ट 26 दिसंबर 22 से लेके 24, 2 साल का कंसोलिडेशन था। उसके बाद फिर से एक बुलिश कैंडल बनी और एक फिर से कंसोलिडेशन मोड में चला गया है। तो ये अब ये जो रेंज बनी है, एक ध्यान से समझना इसको, ये कंसेप्ट क्या है। ये जो एक एक कैंडल बनी थी, वीकली कैंडल्स पे हम लोग बात करें, उसके अंदर सारी कैंडल्स बनी थी।
ये जो रेंज अगर मैं डिफाइन करता हूँ, ये एक रेंज थी, ये एक रेंज थी, इस रेंज के अंदर सारी कैंडल बनी थी। सेम थिंग हैपनिंग राइट नाउ इन दिस, एक रेंज बनी है, एक रेंज बनी है, ये रेंज के अंडर भी ट्रेड, यहाँ पे ये हाई ब्रेक हुआ था ये रेंज का, बट वहाँ पे कंसोलिडेट हुआ नहीं, या सॉरी यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ, वो फिर से रेंज में आ गया। सो वी विल कंसिडर इट रेंज बाउंड ओनली। तो अब ये रेंज का भी एक ब्रेकआउट आना अभी बनता है, ठीक है। ऐसे कोई वॉल्यूम्स में अब तक गिरावट सेल्स नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत आराम से ये ट्रेड हो रहा है। तो इसमें भी आपको सेफ ट्रेड आपको मिल सकता है एरिस एग्रो में भी। एंड आई एम डिफाइनिंग दैट दिस इज ऑल द स्टडी पर्पज, आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू that do this trade. If you want to take this trade, then you have to consult with your financial advisor, as I am not a SEBI registered swing trader. So this is all I am explaining what I am doing on my account. So take your trade according to your risk appetite. मैं कहीं भी किसी भी ट्रेड में 5% के मेरे कैपिटल से ज़्यादा मैं अलॉट नहीं करता हूँ। So try to follow money management also, and if you have any question about money management, then you can ask me. I have my number given in the description now. And kindly please like and comment if you are really liking this video. And this will be little bit a long video, but it worth to watch on your weekends, right? It's also the study purpose I am explaining you. सो ट्राइडेंट एक लिया था, एक एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, ये ट्रेड बंद हो चुका है, अब मेरी कोई पोजीशन नहीं है, बट इस ट्रेड ने भी हमें आराम से, हमें तो हमने 38 पे ये ट्रेड लिया था। अगेन ये जो कब बना था, ये जो एक कप बना था, इसका जो हैंडल का लोअर लेवल था, जैसे मैंने कहा कि मैंने लोअर लेवल के आसपास में ट्रेड लेता हूँ, तो हमें 38 पे हम लोग ने ट्रेड लिया था, 38 से लेके अराउंड 30-40% हम लोग ने एक क्विकली रिटर्न लिए 2 वीक में, और हम एग्जिट हो गए इस ट्रेड से। सो अभी कोई पोजीशन नहीं है इस ट्रेड में। Yes, speak. This is a trade I am interested. I have entered again on this lower level 76 के लेवल पे। हम लोग ने यहाँ पे एंटर फिर से किया है। एक ट्रेड हमारा यहाँ पे हम लोग ने प्रॉफिट बुक कर लिया था 111 के आसपास, और हम अब यहाँ से फिर से एंटर कर रहे हैं, और इसका अल्टीमेट टारगेट होगा अराउंड 115 रुपीज। सो ये खाली चैनल ट्रेडिंग जो एक बना, ऐसे बन रहा है, बस वही ट्रेड है, कुछ उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। और आपका स्टॉप बहुत वेल डिफाइन है अब इस केस में। सो इफ आई वांट टू टेक पोजीशन नाउ इन दिस पोजीशन 83 पे मैं लूंगा, मेरा स्टॉप लॉस होगा अराउंड 16% का। सो इसके डबल में प्रॉफिट चाहता हूँ, तो अराउंड 32% का मैं यहाँ पे स्टॉप लगाऊंगा, विच इज़ अ अपर चैनल रेंज। तो ये परफेक्ट मैच हो रहा है कि जितनी रिस्क ले रहा हूँ, एपिटेट है जिसका, मेरा उसका डबल में हमेशा प्रॉफिट लेता हूँ, सो दैट मेरा 50-50 भी रेशो आता है विनिंग का, तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर 50% भी मेरे लॉस में जाते हैं तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सो इट्स नॉट अबाउट इमोशंस, इट्स जस्ट अबाउट मैथमेटिकल। ये सिर्फ मैथ्स है, बाकी कुछ इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। डोंट बी गेट सो इमोशनल आपको अगर रॉन्ग होते हैं ट्रेड। एज फार एज यू आर मेंटेनिंग 50% हिटिंग रेशियो, उतना तो स्टडी आपको करना पड़ेगा कि 50 से भी अगर आपका नीचे आ रहा है प्रेडिक्शंस, देन देर इज अ प्रॉब्लम। सो अकॉर्डिंग टू माई स्टडी, जो मैं स्विंग ट्रेडिंग्स दे रहा हूँ, उसमें से हमारी जो हिटिंग प्रोबेबिलिटी है वो अराउंड ओवर मोर देन 80% है। सो यू कैन इमेजिन हाउ द गुड प्रेडिक्शन वी आर मेकिंग। कैस्ट्रोलिन सरला पॉली में भी एक अच्छा पैटर्न बना है, जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर था उसको ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट किया है, वहाँ पे एक ट्रेड घूम रहा है, इनके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे भी अगर ये स्टॉप पकड़ के आप लेते हो, तो उसका अपर टारगेट 74 है, तो एक 1:2 यहाँ पे भी एक ट्रेड सरला पॉली में भी ऑन है। कैस्ट्रोल इंडिया, एक सेकेंड, हम इसको 140 से ट्रेड कर रहे थे, अब थोड़ी क्वांटिटी मेरे पास बची है जो फ्री शेयर्स है, बाकी तो मैंने यहाँ पे बुक कर लिया था जब उसने ऑल इसके ऑल टाइम हाई पे गया था 217 के आसपास। वहाँ पे मैंने नॉट नॉट ऑल टाइम हाई एक्चुअली, एक रेंज, एक प्रीवियस कहीं पे एक स्विंग हाई था, वहाँ पे ये पहुंच चुका है अब। बट रिसेंट टाइम में इसका ये ऑल टाइम हाई 52 वीक हाई था उसका, वहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था, जो मैंने 140 से ट्रेड करना चालू किया था यहाँ पे। इफ आई शो यू, यस 144 के आसपास से। अब ये 144 कहाँ से आया, सेम लॉजिक, यहाँ पे एक एक सॉरी, ये एक रेंज था, यहाँ पे एक कब बना था, इसका हैंडल का लोअर लेवल था, यहाँ पे मुझे ये ट्रेड मिला। यहाँ पे मुझे ट्रेड कैसे मिलते हैं, तो दैट्स अ स्टडी पार्ट। इफ यू वांट टू नो हाउ आई एम एबल टू फाइंड आउट दिस काइंड ऑफ ट्रेड्स, देन यू कैन आस्क मी, वी विल टॉक अबाउट इट, राइट। सो ये था। अब ये फिर से रेंज के उसके अपर एंड में आया। अब जो नए स्विंग ट्रेडर है उनके लिए ये स्विंग लो विल बी स्टॉप लॉस, ये स्विंग लो आपका स्टॉप लॉस होगा 184 का, और यहाँ से आप बाय कर सकते हो फॉर 1:2।
सो अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ कैस्ट्रॉल में, तो 13-14% का मेरा स्टॉप लॉस है, तो आई विल बी आइंग ऑन 28% रिटर्न हियर। तो ये निकल के आ रहा है 275 रुपीज। तो एक स्विंग ट्रेडिंग इसमें भी अभी ऑन है, कैस्ट्रॉल इंडिया में भी है, डीसीबी बैंक। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस मैंने दिया था एक्चुअली। सेम एक कप एंड हैंडल काइंड ऑफ पैटर्न बना था। मैंने यहाँ पे 120 के आसपास, ये प्रीवियस वीडियो में भी ये ट्रेड दे चुका था। ये चला भी गया था 155 के आसपास। उसके बाद इसने फिर से इसमें मेरा टारगेट था 170, बट 170 टारगेट हिट नहीं हुआ। ये 150 160 के आसपास से रिवर्स हुआ और उसने यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट किया। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करने के बाद उसने फिर से यहाँ पे अब एक अपर मूवमेंट दी है, बट आई एम नॉट टेकिंग एनी ट्रेड नाउ इनटू दिस, एज माय ऑल कैपिटल इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड इन सम अदर ट्रेड्स। बट जिसको ये ट्रेड लेना है उसके लिए ये जो स्विंग लो है, सो यहाँ से ये जो चीज़ 15% का आपका स्टॉप लॉस होगा, तो यू विल आई अराउंड 30%। और 1:2 180 रुपीज सबसे टारगेट निकल के आ रहा है डीसीबी बैंक का। सो ये चार्ट भी अच्छा है। एंड यहाँ पे इफ यू सी, यहाँ से वो गिरा था, तो मुझे लग रहा है कि ये जोन में जाने की ये फिर से कोशिश करेगा। सो कीप वॉच ऑन डीसीबी बैंक। बालाजी अमाइंस, यहाँ पे 2 बार उसने ट्राई किया ऊपर जाने का, तो एक एक शॉर्ट टर्म इसका बेस मुझे लग रहा है यहाँ पे बन चुका है वीकली बेसिस पे। तो अगेन बालाजी अमाइंस में भी आपका छोटा सा एक स्टॉप होगा 12% का। एंड यहाँ से मुझे लग रहा है ये जो लो है 28%। ओके, सो दिस इज ऑल्सो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो, 28% के लिए आप ये ट्रेड प्लान कर सकते हो। अवंती फीड, यहाँ पे भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड आई हैव एग्जिटेड दिस ट्रेड। बट इसमें एक मैंने चीज़ अच्छी की थी कि मैंने यहाँ पे 50% क्वांटिटी मेरी बुक कर ली थी, बिकॉज ये बहुत ट्रेड अनस्टेबल चल रहा था। सो मैंने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी मैंने ऑलरेडी बुक कर चुका था। और ये जो रेड कैंडल एक बनी, शेकआउट था ये, बट आई डू गिव माई स्टॉप लॉसेस, कि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ स्टॉप लॉसेस की। दो ये अभी फिर से ऊपर चला जाएगा तो मैं फिर से ले लूंगा, बट जब मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, तो एज एज पर माय स्ट्रेटेजी मैं यहाँ पे स्टॉप लेता हूँ। जो कि पोल का नीचे का लेवल था, वीकली क्लोजिंग उसके नीचे आ चुकी थी, तो मैंने सारे स्टॉप मेरे ले चुका हूँ मैं यहाँ पे। बट अभी ये ट्रेड ऑन है फिर से, and कभी आपको एंट्री लेनी है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वीक का जो हाई है 537 का, इसके ऊपर अगर ट्रेड जाने लगा तो आपको एंटर करना है इसमें। और ये जो लेवल है वीकली, ये जो लेवल है, तो ये आपका स्टॉप होगा। तो अराउंड 10-12% का आपका स्टॉप लॉस है, और आपका टारगेट आपको रखना चाहिए 22%। तो यहाँ पे सेम आ ही रहा है 22%, तो दिस इज ऑल्सो मैचिंग नाउ। सो यस, ये ट्रेड भी आप ले सकते हो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो के लिए। एग्जैक्टली 660 विल बी योर टारगेट। सो ऐसे बहुत सारे ट्रेड है, आई वोंट एक्सप्लेन एवरीथिंग नाउ एज टाइम इज नॉट परमिटिंग एंड आप भी बोर हो जाओगे। एक महाराष्ट्र बैंक में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगेन सबसे पहला ट्रेड हुआ था मेरा यहाँ पे, जब एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन हुआ था और डबल हैंड उसका हैंडल बना था। तो सबसे पहले मैंने अराउंड एक 17 रुपीज़, जैसे मैंने बोला कि 17 रुपीज़ में मैंने लिया था। ये ब्रेकआउट जब हुआ तब एक 31 रुपीज़ के आसपास लिया था। एक ये जब फॉल आया था यहाँ पे 39 रुपीज़ की वैल्यू थी, मैं कभी भी याद है मैंने 39 पे ऐड किया था। तो आपको ऐसे ऐड करते ही जाना है, बिकॉज मेरा ट्रस्ट है कि ये बैंक बहुत सही कर रही है। अब एक एक बड़ा एक इसमें एक कंसोलिडेशन हुआ सिंस आई कैन से फेब्रुवरी से लेके अब अप्रैल तक के कंसोलिडेशन हुआ है। तो ये कंसोलिडेशन का भी ब्रेकआउट हमें देखने को हाई चांसेस है अभी, राइट। तो ये इसके टारगेट्स मुझे लग रहा है कि अभी 80 रुपीज तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। देखते हैं कि ये रेंज कितने परसेंट की है। अराउंड 25% आई एम फीलिंग दिस विल बी रेंज ऑफ, यस, अराउंड 25% की एक रेंज यहाँ पे हमें दिख रही है। 25% इज रियली गुड फॉर अ स्विंग ट्रेड, राइट, बट आई एम ट्रेडिंग इट एज ए इन्वेस्टमेंट नाउ। ये मेरे अलग अकाउंट में ट्रेड चल रहा है। सो 87 रुपीज टारगेट निकल के आ रहा है महाराष्ट्र बैंक का आने वाले कुछ टाइम पे। और जैसे हम लोगों ने पीएसयू बैंक का सेक्टर भी देखा, तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी मूवमेंट नज़र आ रही है पीएसयू सेक्टर्स में। अमृतांजन है कि देर आर मेनी स्टॉक, जस्ट आस्क मी अबाउट व्हाट काइंड ऑफ ट्रेड यू वांट। बहुत काफ़ी अच्छे ट्रेड यहाँ पे, अमृतांजन भी एक अच्छे पोजीशन पे यहाँ पे खड़ा हुआ है। सो यस, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ मैं।
एंड नई बैच मेरी जो है स्विंग ट्रेडिंग्स की, ये जो सारी टेक्निक्स है अगर आपको सीखना है तो 1 मई से, नॉट 1 मई, मई मंथ का जो आई विल शो यू द वीकेंड्स ऑफ मे, यस 4th मई जो आ रहा है सैटरडे, फर्स्ट वीकेंड ऑफ मई, यहाँ से मेरी बैच चालू हो रही है। तो दोज हु वांट टू इंटरेस्टेड, इट विल बी अराउंड 2 months का बैच होगा, उसमें सारे हम बेसिक्स और एडवांस सारे टेक्निक्स सीखेंगे। So, yes, message me if you want to participate. So that's it from my side this week, and have a nice weekend ahead. And let me know if you have any queries. So thank you for watching, and do like and subscribe. Bye bye.